Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learnt about electric current, the magnetic effects of electric current. So, I hope you all have revised that chapter. And now, in today's class, we are going to start with a new chapter, that is light. So first of all, students, you all are going to identify the path that light travels and recognize how it can be seen through different sources. So सबसे पहले तो आप लोग ये चीज समझोगे कि लाइट जो है वो ट्रैवल कैसे करती है और आप जो है वो लाइट के पाथ को देख कैसे सकते हो जो कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लाइट्स आती है. Then you are going to explain why light travels in straight lines and how it is demonstrated using different types of pipes. देन हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है एंड इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इस विजुअल को हम लोग दिखा कैसे सकते हैं पाइप्स का यूज करके. Then we are going to see use a mirror to demonstrate the reflection of light and how images are formed. And इसके बाद हम लोग मिरर का यूज करके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझेंगे एंड ये भी देखेंगे कि इमेजेस किस तरह से बनती है. Then compare the characteristics of images formed by plane mirrors, concave mirrors and convex mirrors. So इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हो, आप characteristics of images को compare करोगे जो कि plane mirror, concave mirror और convex mirror से बनेगी. Then इसके बाद you all are going to assess the impacts of different types of mirrors and lenses in real world application. So हम लोग lenses और mirrors को हमने अपनी real life में कहाँ use करते हैं. Then you are going to design an experiment to show how a prism separates sunlight into its constituent colors. So इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एक experiment डिजाइन करेंगे so that एक prism जो है वो क्या कर सकता है, वो sunlight को separate कर सकता है उसके constituent colors के अंदर. So here we have boot up. So following given images show different pattern of shadows using hands and fingers. So यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, कुछ images है जिसमें हमारे पास कुछ different हैंड्स और फिंगर्स का यूज कर हम लोग पैटर्न ऑफ शैडोज को देख सकते हैं. सो हैव यू एवर प्लेड एंड फॉर्म सच इमेजेस विद योर फ्रेंड्स. सो क्या आप लोगों ने कभी भी देखा है इन तरह की इमेजेस को आप लोगों ने बनाया है अपने फ्रेंड्स के साथ. सो यू हैव टू राइट योर एक्सपीरियंस ओवर हियर. देन नेम एनी वन फैक्टर इन द एब्सेंस ऑफ व्हिच दीज इमेजेस कैन नॉट बी फॉर्म. सो बच्चों ये इमेजेस कब नहीं बन सकती, सो अगर लाइट नहीं होगी तो ये इमेजेस जो है वो नहीं बनेगी, राइट. So now बच्चों next we have light plays a significant role in our daily lives. अब light जो है वो बहुत ज्यादा important है हमारी daily life के लिए. light के हम लोग various roles भी देखने वाले हैं. So a beam of light entering through a narrow gap in a room or the light from headlamps of vehicles like scooters, cars and trains are common examples. So now बच्चों ये light हम कहाँ कहाँ देखने को मिलती है. So कुछ light हमारी vehicles के headlamp से निकलती है, कुछ light हम लोग हमारे room के एक narrow होल से आते हुए देख सकते हैं. सो लाइट बीम्स आर ऑल्सो विजिबल फ्रॉम सोर्सेज लाइक टॉर्चेस, सर्च लाइट्स इन लाइट हाउसेज एंड एयरपोर्ट टावर्स. सो अब हम लोग कुछ तरह की लाइट बीम्स यानी कि जो लाइट की रेज होती है उनको ट्रैवल करते हुए भी देख सकते हैं कुछ डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि टॉर्चेस से, सर्च लाइट से, लाइट हाउसेज से एंड एयरपोर्ट टावर से. So these examples demonstrate how light travels and spreads, allowing us to perceive it under different circumstances. So बच्चों अब ये सारे examples हमको क्या दिखा रहे हैं, हमको क्या समझा रहे हैं कि लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल कर सकती है, कैसे स्प्रेड हो सकती है. So light is essential for visibility and has numerous application in its technology and nature. So light जो है वो हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विजिबिलिटी के लिए एंड ऑल्सो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है हमारे टेक्नोलॉजी एंड नेचर के अंदर. So now here we are going to see rectilinear propagation of light. So बच्चों लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी लाइट की. एंड लाइट जब स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. सो रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, प्रोपेगेशन का मतलब ट्रैवल. सो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, इन अ स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जाम्पल when trying to view a candle flame through a straight pipe, the flame is visible, but through a bent pipe it is not. So बच्चों अब हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमें कैसे ये पता चला कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, क्योंकि जब हम लोग हमारी कैंडल फ्लेम को एक स्ट्रेट पाइप से देखेंगे तो हमको उसकी फ्लेम दिख जाएगी, बट अगर हम इसी कैंडल की फ्लेम को एक बेंड पाइप से देखेंगे तो हमें उसकी फ्लेम नहीं दिखेगी. सो ये बताता है कि लाइट जो है वो बेंड नहीं होती है अराउंड द कॉर्नर्स एंड पाथ ऑफ लाइट वो क्या होगा, वो हर
सरफेस से ऑल्टर हो सकता है। सो जब लाइट स्ट्राइक करती है पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस को, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है एंड उसी से हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हाथ एक शाइनी सरफेस है एंड ये लाइट यहाँ से जैसे आ रही है, सो ये लाइट मान लो इस तरीके से सरफेस से टकराई। सो अब ये इस डायरेक्शन में जा रही थी ना, बट इस सरफेस से टकराते ही ये अब इस डायरेक्शन में वापस आने लग जाएगी। सो इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो नाउ अब हम लोग कुछ एक एक्टिविटी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ सकते हैं, और ऑल्सो अब हम हमारे पास यहाँ पर हैंड्स ऑन एक्टिविटी है जिसमें हम लोग शो करेंगे कि लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। सो मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमको? कैंडल, ओपेक प्लास्टिक या फिर रबर ट्यूब। एंड आप लोग यहाँ पर मेथड देख सकते हो, आपने कैंडल को जलाया, आपने उसको टेबल पे रखा एंड नाउ आपको एक रबर ट्यूब जो है उसको वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आपको उसको होल्ड कर रखना है। एंड उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उस रबर ट्यूब से जो हमारे फ्लेम है कैंडल का, उसको एक होल से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको वो फ्लेम दिख जाएगी। बट अगर आप बेंड ट्यूब से उस होल को देखोगे तो क्या आपको वो दिखेगी? सो नाउ ऑब्जर्वेशन क्या होने वाली है कि जब आप लोग फ्लेम को देखोगे थ्रू स्ट्रेट ट्यूब, तब आपको फ्लेम दिखेगी, बट आपको बेंड ट्यूब के साथ वो फ्लेम नहीं दिखेगी। सो व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड स्ट्रेट द सोर्स ऑफ लाइट कैन बी सीन, बट जब हमने ट्यूब को बेंड किया तो हमको सोर्स ऑफ लाइट नहीं दिखा। तो कंक्लूजन क्या है कि लाइट ट्रैवल करता है कैसे? इन अ स्ट्रेट लाइन। Now students, next we have reflection of light. So reflection of light कब होती है? जब हमारी लाइट हिट करती है किसी भी शाइनी या फिर पॉलिश सरफेस को, जिससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमने अभी इसका एग्जांपल देखा था, माय हैंड इज अ शाइनी और पॉलिश सरफेस। एक लाइट यहाँ से आई, इस सरफेस से जैसे ही टकराई तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले ये ऐसे जा रही थी, बट अब इससे टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और सर्फेसेस जैसे कि स्टेनलेस स्टील, प्लेट, स्टील स्पून और इवन वाटर, ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं? मिरर्स की तरह। सो ये सब क्या है? ये सब लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस व्हेन यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर, इट इज ड्यू टू विच प्रॉपर्टी? इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ओनली। सो बच्चों, हम लोग जो इमेजेस देख सकते हैं कुछ बिल्डिंग्स पे, जैसे कि हम लोगों को कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है ट्रीज के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, बिल्डिंग्स की वाटर के अंदर, ये सब किसकी वजह से हो पाता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। सो कोई भी एक पॉलिश सरफेस क्या कर सकता है? वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। सो अब रिफ्लेक्शन है क्या कि हमारी लाइट स्ट्राइक करती है मिरर के ऊपर, ये मिरर है, हमारी लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करी एंड अब ये बाउंस बैक होगी, ठीक है। सो इसको डायरेक्शन चेंज होने को क्या बोला जाता है? बाउंस बैक। एंड यही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। So this phenomena is essential for many optical devices and everyday observation. अब ये phenomena बहुत ज्यादा important है कुछ optical devices के अंदर, कुछ everyday observations के अंदर, and based on the surface जहाँ से light जो है वो reflect होती है। Reflection दो तरीके की हो सकती है, regular and irregular reflection. So now students, here we have pick up more. So objects जो है वो हमको कब visible होते हैं? That is because of light only. क्योंकि वो क्या करते हैं? वो हमारी light को अपने surface से reflect back करते हैं and अब ये reflected light हमारी eyes के अंदर जाती है, तभी हमको कोई object visible हो पाता है। So light sources जैसे कि sun और artificial lightning, ये strike करते हैं objects को and then ये reflect हो जाते हैं and इसके बाद ये travel करते हैं हमारे eyes के अंदर, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। So without light हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते, कोई भी चीज विजिबल नहीं होने वाली है। एंड दिस प्रोसेस एक्सप्लेन्स व्हाई वी कैन सी द वर्ल्ड अराउंड अस। नाउ बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं दो तरीके के रिफ्लेक्शन की, एंड वो क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में भी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, एंड जो भी लाइट अब यहाँ पर फॉल करेगी वो क्या होगा? वो रेगुलरली रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होती जाएगी, राइट। बट अगर हम बात करें इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के सरफेस को देखो जरा कैसा है? ये बहुत ज्यादा डल एंड रफ है। सो दैट इज वाई जितनी भी लाइट रेज यहाँ पर फॉल हो रही है वो सब क्या कर रही है? हर डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है। एंड इसी तरीके के रिफ्लेक्शन को बोला जाता है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो यू विल नोटिस, आप लोग नोटिस करोगे कि मिरर्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं ज्यादा लाइट को, अदर दैन more light than the other object. So polished block of wood ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है more light को than an unpolished one. So now बच्चों, अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझनी है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा जिस सरफेस से होगा वो सरफेस पॉलिश होना चाहिए। सो अब अगर हमारे पास एक सरफेस है जो ज्यादा पॉलिश्ड है, एक सरफेस है जो कि कम पॉलिश्ड है, सो ज्यादा लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? उस सरफेस से जो कि वेल पॉलिश्ड है। सो इन जनरल स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस ये क्या करते हैं? ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं रेगुलर पैटर्न में।
So now here you have a thought shower. Can a piece of paper can be considered to be smooth and well polished for regular reflection to happen? So now बच्चों एक piece of paper जो है उसको हम लोग एक well polished surface से नहीं compare कर सकते, क्योंकि piece of paper से हमको उस तरीके का regular reflection नहीं देखने को मिलेगा जो कि एक polished surface से हमको देखने को मिलता है. So now here we have hands-on learning too. So यहाँ पे हमारा aim क्या है? We have to observe how lights reflects off plane mirror, and उसके बाद we are going to see how the direction of light changes upon reflection. So इसके लिए आपको एक torch चाहिए, एक chart paper चाहिए, एक plane mirror strip चाहिए, smooth wooden board चाहिए, scissors चाहिए, adhesive tape चाहिए and glue चाहिए. So यहाँ पे मेथड क्या होने वाला है, आप लोगों को कट करना है पीस ऑफ चार्ट पेपर को, आपको 3 नैरो स्लिट्स जो है वो बनाने हैं उसके अंदर, देन आप लोग कवर करने वाले हो ग्लास ऑफ द टॉर्च को विद दिस चार्ट पेपर ओनली. ठीक है. नाउ इसके बाद आप इंश्योर करोगे कि लाइट जो है वो पास होनी चाहिए इन स्लिट्स के अंदर से. अब आप लोग स्प्रेड करोगे शीट ऑफ चार्ट पेपर को एक स्मूथ वुडन बोर्ड के ऊपर एंड उसको फिक्स करोगे प्लेन मिरर को वर्टिकली उसके वुडन बोर्ड के ऊपर. नाउ डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट जो है वो हमारी आनी चाहिए टॉर्च से सीधा प्लेन मिरर के ऊपर, एंड हमको ये इंश्योर करना है कि लाइट जो है वो स्ट्राइक करे हमारे मिरर को एक एंगल पे. सो अब हम एडजस्ट करेंगे पोजीशन ऑफ टॉर्च को अंटिल लाइट ऑफ बीम जो है वो हमको क्लियरली विजिबल ना हो जाए चार्ट पेपर्स पे. सो स्लाइटली अब हम मूव करेंगे टॉर्च को दूसरी साइड पे एंड ऑब्जर्व करेंगे चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट को. देन इसके बाद हम लोग मिरर में देखेंगे एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट देखेंगे सो दैट हम ऑब्जर्व कर पाए हम लोग हमारी इमेज को उन स्लिट्स के थ्रू. ना ऑब्जर्वेशन हमको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी हमारे मिरर को, सो वो मिरर क्या करेगा, उस बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएगा एंड हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी लाइट की. नाउ द स्लिट्स फ्रॉम द टॉर्च अपीयर एज एन इमेज इन द मिरर. सो नाउ हियर वी हैव कंक्लूजन. सो ये एक्टिविटी क्या दिखाती है कि लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है जैसे ही वो एक मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो क्या करती है, वो प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती है जो कि किसका होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एंड ये कंफर्म करता है हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को. सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. Now students, here we have plane mirrors. So plane mirrors कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं, स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं, एंड अब ये क्या करते हैं, ये टर्न कर देते हैं रेज ऑफ लाइट को जो कि इनके सरफेस के ऊपर फॉल हो रही होती है एंड उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट कर देते हैं. सो व्हेन अ लाइटेड कैंडल, जब हम उसको एक फ्रंट प्लेन मिरर के सामने रखेंगे सो फ्लेम जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, राइट. सो ये क्रिएट करेगी एक अपीयरेंस एक दूसरे कैंडल की बिहाइंड द मिरर. सो दिस रिफ्लेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज, एंड एक्चुअल कैंडल उसको हम किस तरीके से रेफर करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह से. सो इमेज जो प्रोड्यूस हो रही है हमारे मिरर के अंदर वो कैसी होगी, वो सीधी होगी, राइट. सो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अपराइट, एंड ये सेम ओरिएंटेशन में होती है जिस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है. सो उसमें फ्लेम टॉप पर होगी एंड हमारा कैंडल वाला पार्ट नीचे होगा. सो इस तरीके की इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज, एंड ये इमेज जो है वो सेम साइज की होती है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ अब जैसे ही हम कैंडल को मूव करेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे, सो हमारी इमेज जो है वो कैसी रहेगी, वो अपराइट रहेगी एंड वो चेंज नहीं होगी. बट हाउएवर इफ द स्क्रीन इज प्लेस्ड बिहाइंड or in front of the mirror, the image of the candle cannot be captured on the screen. अब बच्चों हम लोगों को ये मिरर की जो इमेज है वो हमको ये हमको जो कैंडल की इमेज है ये हमको मिरर पे तो देखने को मिल रही है, राइट. बट अब अगर हम लोग एक स्क्रीन लाकर रख दे हमारे मिरर के सामने या फिर हमारे मिरर के पीछे, तो क्या ये इमेज हमको उस स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगी, नो. सो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लेन मिरर्स कैसी मिरर इमेज बनाते हैं, एक तो इरेक्ट यानी कि सीधी, एंड दूसरी चीज वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती है जो कि हमको स्क्रीन पे नहीं मिल सकती, राइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव पिक अप मोर. सो प्रॉपर्टी ऑफ लेटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज इन प्लेन मिरर इज अप्लाइड इन राइटिंग द एम्बुलेंस. सो ना बच्चों, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हमारी एम्बुलेंस व्हीकल्स होती है उस पे जो एम्बुलेंस लिख रखा होता है वो उल्टा लिख रखा होता है ना. सो उल्टा क्यों लिखते हैं वो लोग, सो दैट जब भी हमारे आगे एम्बुलेंस के आगे कोई गाड़ी चल रही हो एंड जब वो अपने साइड मिरर में देखेगा कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो उसको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई दे. सो अब होता क्या है, हमारे मिरर के अंदर अगर हम राइट हैंड उठाएंगे तो हमको इमेज में मिरर के अंदर क्या दिखेगा कि लेफ्ट हैंड उठा हुआ है. सो इस प्रॉपर्टी को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, एंड इसी की वजह से जो हमारा एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है.
सो नाउ हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग 3. सो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको ऑब्जर्व करना है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इट्स इमेज फ्रॉम द मिरर. सो ना बच्चों, अब इसके लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम लोग रिलेशनशिप निकालने वाले हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है प्लेन मिरर से एंड डिस्टेंस ऑफ इट्स इमेज, यानी कि इमेज का डिस्टेंस कितना है हमारे मिरर से. सो नाउ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, हमको चेस बोर्ड चाहिए, चार्ट पेपर चाहिए, 8x8 ग्रिड में होना चाहिए, प्लेन मिरर, स्मॉल ऑब्जेक्ट, पेंसिल, शार्पनर, रूलर और मेजरिंग टेप. मेथड क्या है, अगर हम लोग चार्ट पेपर यूज कर रहे हैं तो हमको ड्रॉ करना है 8x8 ग्रिड जिसके अंदर 64 स्क्वायर्स होने चाहिए. देन हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वर्टिकल लाइन डाउन द सेंटर जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे प्लेन मिरर को. देन हम अटैच करने वाले हैं प्लेन मिरर को इसी वर्टिकल लाइन के अक्रॉस एंड हम प्लेस करेंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट को एट द बाउंड्रीज ऑफ थर्ड स्क्वायर फ्रॉम द मिरर. देन हम ऑब्जर्व करेंगे हमको रिकॉर्ड करना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इमेज बिहाइंड द मिरर. देन हम मूव करेंगे ऑब्जेक्ट को बाउंड्री की तरफ सो दैट हमारा मिरर हमारे मिरर की तरफ, हमारी बाउंड्रीज की तरफ इसको मूव करेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे हमारी पोजीशन ऑफ इमेज को. सो नाउ बच्चों, ये सारी चीजें करने के बाद आप लोग ऑब्जर्व क्या करोगे कि एक इमेज बनेगी एंड द इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर वो हमेशा किसके इक्वल होने वाला है, द इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है बिहाइंड द मिरर वो ही डिस्टेंस हमारा किसका है, ऑब्जेक्ट का इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो नाउ कंक्लूजन क्या है, एक्टिविटी हमको ये शो कर रही है कि इमेजेस जो कि प्लेन मिरर बनाता है वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे होते हैं बिहाइंड द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. So now students, next we have characteristics of mirror image. अब जो इमेज हमारे मिरर के अंदर बनी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होने वाली है. So now बच्चों, a plane mirror horizontally reverses images, right? So plane mirror क्या करता है कि वो हमारी इमेजेस को रिवर्स कर देता है. So इसका मतलब क्या है कि जब भी हम हमारी रिफ्लेक्शन को देखेंगे मिरर के अंदर और मान लो अगर हम लोगों ने हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो रेस कर रखा है तो हमको मिरर के अंदर हमारा राइट हैंड रेस करता हुआ दिखेगा, राइट? सो सिमिलरली इफ वी टच आवर राइट ईयर, अगर अब हम लोग हमारे राइट ईयर को टच करेंगे सो रिफ्लेक्शन में हम लोगों को हमारा लेफ्ट ईयर टच होता हुआ दिखाई देगा. सो दिस रिवर्सल ओनली अफेक्ट्स द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बट द इमेज रिमेन्स अपराइट एंड इज नॉट टर्न्ड अपसाइड डाउन. अब बच्चों होता क्या है, इस रिवर्सल में खाली हो क्या रहा है, हमारी चीजों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट क्या हमारी इमेज उल्टी हो जा रही है, नहीं. सो एडिशनली जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे एक पीस ऑफ पेपर पे वो भी हमको मिरर के अंदर रिवर्स दिखेगा, राइट? सो अब वहां पे भी हमको लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड अपीयर होने लग जाएगी. सो दिस इफेक्ट इज ड्यू टू अ वे प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट, thus रिवर्सिंग द हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन व्हाइल मेंटेनिंग द वर्टिकल अलाइनमेंट. सो अब हम लोग यहाँ से कलेक्ट क्या कर सकते हैं कि हमारा जो प्लेन मिरर है वो हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को चेंज कर देता है जिसकी वजह से हमको चीजें जो है वो लेफ्ट का राइट दिखता है एंड राइट का लेफ्ट दिखता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू ऑल हैव ब्रश अप सेशन. सो आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों को आंसर करने हैं. Now next we have terms used in reflection of light. So now बच्चों, अब हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यूज करते हैं. सो कुछ कॉमन टर्म्स क्या है, सबसे पहले इंसिडेंट रे. एंड इंसिडेंट रे क्या होती है, वो रे ऑफ लाइट जो कि हमारे सरफेस पे आकर गिरती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. देन इन फिगर ये इंसिडेंट रे हमारे पास क्या है, ये पीक्यू रे, राइट? देन हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, वो रे ऑफ लाइट जो कि अब यहाँ पर जो इंसिडेंट हुई थी अब इस इंसिडेंट रे का जब डायरेक्शन बदल जाएगा तो उसी को क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे. एंड यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, रे क्यू आर. देन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, सो बच्चों जिस पॉइंट पे हमारी इंसिडेंट रे आकर गिरती है वो क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो फिगर में जो हमारे पास ये क्यू एरिया है यही क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. देन हम बात करेंगे नॉर्मल की. सो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक लाइन है जो कि 90 डिग्रीज पे ड्रॉ करी जाती है हमारे सरफेस ऑफ मिरर पे. सो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से हम लोग एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वही हमारा नॉर्मल है. एंड इस फिगर में क्यू एन जो है वो हमारा नॉर्मल है. नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, इंसिडेंट एंगल. सो यहाँ पर हमारे पास एंगल पी क्यू एन जो है वो एंगल इंसिडेंट है. देन एंगल रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल जो कि हमारा बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, दैट इज आवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
सो नाउ हियर वी हैव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बच्चों, जब भी एक लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। एंड हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके ऊपर, किसके इक्विवेलेंट होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आप सब लोगों को ये लॉज अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे सेम प्लेन में होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर्स। सो बच्चों, सारे के सारे मिरर्स क्या हमारे पास प्लेन मिरर्स ही होते हैं? नो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मिरर्स होते हैं। इवन द पॉलिश एंड स्मूथ कर्व सर्फेसेस, वो भी किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? मिरर्स की तरह। एंड इस तरीके के जो हमारे कर्व सर्फेसेस होते हैं, इस तरीके के मिरर्स को क्या बोलते हैं? कर्व मिरर्स या फिर स्फेरिकल मिरर्स। सो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कैन आइदर द आउटसाइड और द इनसाइड ऑफ कर्व सर्फेस। अब बच्चों, जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, इनके जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होते हैं वो हमारे कर्व सर्फेस के अंदर का पार्ट भी हो सकता है और कर्व सर्फेस के बाहर का पार्ट भी हो सकता है। सो इस टाइम पे हम लोग एग्जांपल लेंगे हमारे शाइनिंग स्टील स्पून का। जब आप एक स्पून को अपने फेस के पास लेकर आओगे, राइट, सो ब्रिंग योर फेस क्लोजर टू इट्स बल्जिंग साइड, यानी कि आपको उसकी बल्जिंग साइड पर आपको क्या करना है? अपने फेस को लेकर आना है। सो आपको एक इरेक्ट इमेज दिखेगी अपने फेस की उसके अंदर। नाउ अब आपको क्या करना है? टर्न द इनर साइड ऑफ द स्पून, अब आपको उसको घुमा देना है एंड अगेन सी योर फेस इन इट। सो आपको एक इन्वर्टेड इमेज दिखेगी अपने फेस की उसके अंदर। सो इसलिए बच्चों, अब जो हमारे पास आउटर सरफेस है हमारे स्पून का, जो कि बल्ज आउट है, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। एंड द इनर सरफेस इज नोन एज द कॉनकेव मिरर। सो स्फेरिकल मिरर, ये दो तरीके के हमारे पास, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास ये जो साइड बी है, ये अंदर की साइड किसकी तरह बिहेव कर रही है? ये हमारे पास एक सिल्वर कोटिंग है प्रोटेक्टेड बाय पेंट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस ए एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से होगी। देन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कॉनकेव मिरर में अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये सरफेस बी से होगी। सो इन कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉनकेव सरफेस, यानी कि बेंट इन सरफेस, अंदर वाला सरफेस। सो अदर हैंड कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो कहां से होगी? कॉन्वेक्स सरफेस से, यानी कि बल्ज आउट सरफेस से। सो द सेंटर ऑफ मिरर, इसको क्या बोला जाता है? पोल। द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सो नाउ बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक कर्व मिरर है एंड इसका जो मिरर का सेंटर पॉइंट है उसको पोल बोला जा रहा है। एंड हमारा जो पूरे कर्व सरफेस का जो एक सेंटर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो जो लाइन पास होती है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको क्या बोला जाता है? जो लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास हो रही है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। एंड ऑल द रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कर्व सरफेस ऑफ मिरर ये पॉइंट पर मिलते हैं एंड इस पॉइंट को ही क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस। सो प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का इज रियल एंड लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर। सो आप लोग यहाँ पर कॉनकेव मिरर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो इसका जो फोकस है वो मिरर के सामने है एंड ये रियल है, ठीक है। वाइल प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर के पीछे है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मिरर के पीछे एंड ये वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब क्या है कि रेज यहाँ पर एक्चुअल में मिल नहीं रही है, हमने उसको एक्सटेंड कर मिलवाया है। सो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, इन दोनों को ही स्फेरिकल मिरर्स बोला जाता है एंड इनका सर्फेसेस कैसा होता है? ये पार्ट्स ऑफ स्फीयर्स होते हैं। सो नाउ कॉनकेव मिरर्स, उसका इनवर्ट कर्व सरफेस होता है जो कि हमारे इनसाइड ऑफ स्फीयर से रिसेंबल करता है। एंड जब हम उसको कट करेंगे, सो जब भी हम लोग एक रबर बॉल को कट करेंगे और हम उसके अंदर के सरफेस को देखेंगे, वो ही किसकी तरह है? वो एक कॉनकेव मिरर की तरह है। एंड इनवर्ड आउटर कर्वेचर कॉज करता है लाइट को कि वो कन्वर्ज हो जाए, जो कि एक मैग्नीफाइड इमेज या फिर एक रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। सो कॉन्वेक्स मिरर क्या है? ये आउटवर्ड कर्व सरफेस है जो कि हमारे आउटसाइड ऑफ स्फीयर की तरह है, राइट। सो जब हम लोग कट करेंगे एक रबर बॉल को और जब हम उसका एक आउटर सरफेस देखेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। सो द आउटवर्ड कर्वेचर ये क्या करता है? ये कॉज करता है लाइट रेस को कि वो डाइवर्ज हो जाए, वो स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेजेस बनाए। नाउ द टर्म स्फेरिकल मिरर, ये रिफ्लेक्ट करता है स्फेरिकल शेप को, जो कि ये स्फेरिकल मिरर्स जो है वो स्फेरिकल शेप बताते हैं एंड ये इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरह से हमारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी एंड इमेजेस बनाएगी।
नाउ नेक्स्ट वी हैव रियल एंड वर्चुअल इमेज। सो जब हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, सो जो इमेज बनती है उनका साइज वेरी कर सकता है। सो रियल इमेजेस का मतलब क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट जैसे कि कैंडल फ्लेम, उसको हम लोगों ने एक डिस्टेंस पे रखा कॉनकेव मिरर से, सो इमेज जो बनेगी वो हमको कहाँ मिलेगी, वो स्क्रीन पे मिलेगी। सो जो इमेजेस स्क्रीन पर मिलती है उनको बोला जाता है रियल इमेज। एंड ये रियल इमेजेस लार्जर भी हो सकती है और स्मॉलर भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा हमारे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का, जो कि मिरर से कितना होने वाला है। देन वर्चुअल इमेजेस है। सो वर्चुअल इमेजेस क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू क्लोज टू अ कॉनकेव मिरर, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन. In such cases, image formed might be virtual, meaning it cannot be projected on a screen and appears to be behind the mirror. So now बच्चों, virtual images का मतलब क्या होता है, ऐसी इमेजेस जो हमको स्क्रीन पे नहीं मिल सकती, एंड ऑल्सो ये इमेजेस हमको बिहाइंड द मिरर मिलती है, जस्ट एज इन केस ऑफ द प्लेन मिरर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कर्व्ड मिरर्स। सो बच्चों, कॉनकेव मिरर्स का यूज क्या क्या होता है। सो कॉनकेव मिरर्स को हम लोग रिफ्लेक्टर्स की तरह यूज करते हैं हेडलाइट्स ऑफ कार के अंदर, सर्च लाइट्स के अंदर, सो दैट एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो निकले उसके अंदर से। देन when sunlight is reflected by a concave mirror on a sheet of paper, वो क्या करता है, वो एक sharp bright spot बनाता है। एंड हम लोग इस surface को एडजस्ट कर सकते हैं, जब तक हम लोग हमारे पेपर को एडजस्ट कर सकते हैं जब तक हमारा स्पॉट जो है वो फोकस ना हो जाए एंड हमारा पेपर जलने ना लग जाए। सो ये ब्राइट स्पॉट जो है वो एक रियल इमेज देता है, सो बिकॉज इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। सो इन कंट्रास्ट वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, वो इमेजेस जो कि हमको प्लेन मिरर से मिलती है एंड उनको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो ये कॉनकेव मिरर जो है वो डॉक्टर्स, हमारे डेंटिस्ट यूज करते हैं, सो दैट वो लोग क्या कर सकते हैं, वो हमारे टीथ को एक मैग्नीफाइड, एक एनलार्ज्ड व्यूज का देख सकते हैं। देन वी हैव शेविंग मिरर्स, मेकअप मिरर्स, इन सब में भी हम कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं, सो दैट हमको एक एनलार्ज पिक्चर मिले। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज करते हैं साइड मिरर्स की तरह ऑटोमोबाइल्स के अंदर। सो ड्यू टू देयर एबिलिटी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, वो वाइडर फील्ड, वो ज्यादा एरिया शो करते हैं, सो दैट इज वाई कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग साइड ऑफ व्हीकल्स के अंदर लगाते हैं। एंड ऑल्सो दिस अकर्स बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर कॉज लाइट रेज टू डाइवर्ज। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो रेज को डाइवर्ज करवाता है, राइट। सो नाउ इसकी वजह से होता क्या है कि अब हमारे जो मिरर्स के अंदर इमेजेस प्रोड्यूस होने वाली है वो बहुत ज्यादा छोटी होगी एंड वाइडर व्यू शो करेगी। सो इसकी वजह से ड्राइवर्स जो है वो पीछे के ट्रैफिक को एक छोटे से मिरर के अंदर वाइडर एरिया में देख सकते हैं। नाउ जो हमारे पास बिग कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो बिग शॉप्स एंड स्टोर्स में भी लगे होते हैं, स्टेयर केस मिरर्स के अंदर यूज करते हैं डबल डेकर बसेस के अंदर, एंड ऑल्सो जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती है उधर भी कॉन्वेक्स मिरर्स ही लगे होते हैं। So now students, next we have lenses, and lenses क्या होते हैं, lenses are optical devices जिनको हम लोग यूज करते हैं मैग्नीफाई या फिर हमारे पाथ ऑफ लाइट को ऑल्टर करने के लिए। सो कॉमन एग्जांपल्स क्या है हमारे पास लेंसेज के, वी हैव मैग्नीफाइंग ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स। सो लेंसेज वी कैन फाइंड these lenses in cameras also, projectors, and even in some types of eyeglasses. So depending on their shape and refracting action, they are classified as convex and concave lenses. So अब हमारे पास दो तरीके के lenses होते हैं, convex and concave lenses. So convex lenses क्या होते हैं, convex lenses बीच में, यानी कि they have thicker in the middle than the edges. So convex lenses जो है वो बीच में thicker होते हैं and उनकी edges कैसी होती है, वो काफी ज्यादा पतली होती है। So convex lenses करते क्या है, ये light rays को converge कर कर एक point पर लेकर आते हैं, and convex lenses को use किया जाता है मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस या फिर सम टाइम्स ऑफ रीडिंग ग्लासेस। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव कॉनकेव लेंसेज। सो कॉनकेव लेंसेज जो है वो जस्ट ऑपोजिट होते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज के। सो कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉनकेव लेंसेज जो है वो बीच में, यानी कि वो थिनर होते हैं इन द मिडल सेक्शन एंड थिकर होते हैं एट द एजेस। सो अब कॉनकेव लेंसेज क्या करते हैं, वो लोग हमारी लाइट को डाइवर्ज करवाते हैं। द इमर्जिंग रे डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, हाउएवर दे सीम टू इंटरसेक्ट ऑन इंसिडेंट साइड बाय ट्रेसिंग द इमर्जिंग रे बैकवर्ड। सो नाउ बच्चों होता क्या है, कॉनकेव लेंसेज के अंदर लाइट रेज जो है वो एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है, हम लोग लाइट रेज को बैकवर्ड जो है वो स्ट्रेच करते हैं सो दैट ये लोग एक पॉइंट पर आकर मिल जाए। नाउ नेक्स्ट वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटी 4। सो यहाँ पर आपका एम क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है इफेक्ट्स ऑफ लेंसेज को। उसके लिए यू ऑल आर गोइंग टू यूज कॉन्वेक्स लेंस या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, एंड देन आप लोग एक शीट ऑफ पेपर लोगे और साथ में एक कॉन्केव लेंस लोगे। सो मेथड क्या है हमारा, यहाँ पर हमको एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए,
इसके बाद आप लोग अपने कॉन्वेक्स लेंस या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास को पाथ ऑफ सन रेज के बीच में रखोगे। देन इसके बाद आप लोग एक शीट ऑफ पेपर रखने वाले हो एंड देन यू आर गोइंग टू एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड पेपर टिल आपको एक ब्राइट स्पॉट ना मिल जाए पेपर के ऊपर। नाउ यू ऑल हैव टू होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। नाउ अब आप लोग ऑब्जर्व क्या करोगे कि पेपर जो है वो बर्न होने लग जाएगा इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एंड इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस ब्राइट स्पॉट जो है वो हमको दिखेगा ही नहीं हमारे शीट ऑफ पेपर पे। सो कंक्लूजन क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, वो कन्वर्जिंग लेंस है, वो कन्वर्ज कर देते हैं रेज ऑफ लाइट को एंड इन सारी लाइट्स को एक सिंगल पॉइंट पे वो कन्वर्ज करते हैं। जिसकी वजह से हमारा पीस ऑफ पेपर जो है वो बर्न होने लग गया था। एंड एन इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, इनको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। So when parallel rays of light pass through a concave lens, refracted rays diverge so that they appear to come from one point called the principal focus. So now बच्चों हम लोग क्या देख सकते हैं कॉन्केव लेंस के केस में कि यहाँ पर जितनी भी लाइट रेस पास हो रही है ये सब क्या होती है, ये सब डाइवर्ज हो जाती है, सो दैट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी की सारी लाइट जो है वो एक पॉइंट पर मिल रही है जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। सो द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ लेंस, इसी को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। एंड द इमेज दस फॉर्म, यहाँ पर जो इमेज हमको दिखती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ना बच्चों अगर हम लोग बात करें कॉन्केव लेंस की, सो ये कैसे होते हैं, ये हमारी लाइट रेस को डाइवर्ज कर देते हैं एंड ऑल्सो हम लोग कॉन्केव लेंस को नियर साइटेडनेस देखने के लिए करेक्ट करते हैं। जब भी हमारे पास हमारी जो पास की नजर जो है वो कमजोर होती है, सो इन दैट केस हम लोग इनका यूज करते हैं। सो दे हेल्प टू स्प्रेड लाइट रेस सो दैट दे कैन फोकस करेक्टली ऑन इट्स रेटिना। नाउ नेक्स्ट वी हैव इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अब हम लोग इमेज को कैसे दिखाने वाले हैं हमारे लेंस के अंदर। सो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसी इमेजेस फॉर्म करते हैं, डिफरेंट साइजेस की, एंड ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दूर रखा हुआ है या कितना पास रखा हुआ है हमारे लेंस के। हाउएवर कॉन्केव लेंस द इमेज फॉर्म ये हमेशा कैसी होती है, छोटी होती है, अपराइट होती है, वर्चुअल होती है एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। सो हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को लेंस के कितने भी डिस्टेंस पे रखे, इमेज हमेशा छोटी होगी, अपराइट होगी एंड वर्चुअल होगी। सो टू ऑब्टेन द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, हमको कॉन्वेक्स लेंस को कहां पर रखना है, लेंस होल्डर में। हमको लाइट को प्लेस करना है कैंडल स्टैंड के ऊपर, यानी कि एक लाइटेड कैंडल को हमको स्टैंड के ऊपर रखना है। देन हम लोग एक वाइट स्क्रीन लेने वाले हैं टेबल के अदर साइड ऑफ द लेंस पे एंड इसके बाद हम लोग एडजस्ट करेंगे डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द लेंस सो दैट हमको एक इमेज मिल जाए हमारे कैंडल की। नाउ इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग नेचर ऑफ इमेजेस देखेंगे। सो यहाँ पर आप लोगों के पास टेबल है, आप लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे, सो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर आएगा, सेम साइड ऑफ द लेंस जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। एंड नेचर ऑफ इमेज का रहने वाला है मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। देन अगर हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन एफ एंड 2f रहने वाला है, सो अब हमको हमारी जो इमेज है वो कहां पर मिलेगी, अदर साइड ऑफ लेंस पे, यानी कि बियॉन्ड 2f। एंड अब हमारी इमेज यहाँ पर कैसी होगी, मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f पे है, सो हमको इमेज कहाँ पे मिलेगी, अदर साइड ऑफ लेंस पे, एंड ये इमेज जो है वो सेम इन साइज होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। एंड बियॉन्ड 2f अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सो हमको इमेज मिलेगी बिटवीन f एंड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, एंड ये इमेज कैसी होने वाली है, स्मॉलर इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। So now बच्चों thus we can conclude that when object is far away from the lens, so अगर हम लोग इस चीज से क्या conclude कर सकते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे लेंस से बहुत दूर है, सो इमेज कैसी होने वाली है, इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे हमारे लेंस से, तो इमेज कैसी बनती जाएगी, ये बिगर होती जाएगी। एंड ये जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे हमारे लेंस से अगर हम इसको दूर करते जाएंगे तो भी हमारी इमेज बिगर होती जाएगी। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास है हमारे लेंस के, सो कोई भी रियल इमेज हमको बनती हुई नहीं दिखेगी स्क्रीन पे। हाउएवर हमको एक इरेक्ट, मैग्निफाइड और वर्चुअल इमेज जो है वो देखने को मिलेगी। सो नाउ स्टूडेंट्स हियर यू ऑल हैव पिक अप मोर। सो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारी आईज के अंदर, राइट। सो अब ये क्या करता है, ये लेंस लाइट को कलेक्ट करता है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड इसके बाद ये इसको फोकस करता है रेटिना के ऊपर। इसके बाद रेटिना क्या करता है, रेटिना अब इस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन भेजती है हमारे ब्रेन के पास थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। So here you have brush up session 2. So आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। Can light bend around its object in its path? So no, light जो है वो bend नहीं करती। So does a plane mirror forms a real image or virtual image? So plane mirror virtual images form करते हैं क्योंकि real images वो images होती है जो कि हमको स्क्रीन पर मिलती है।
नाउ नेक्स्ट वी हैव सनलाइट व्हाइट और कलर। सो ना बच्चों सनलाइट हमको कैसे दिखती है, सनलाइट जो है वो व्हाइट कलर की हमको दिखती है, बट एक्चुअल में सनलाइट के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं जिसको हम लोग वेरियस फिनोमिना से देख सकते हैं। सो हियर वी हैव रेनबो फॉर्मेशन। सो अ रेनबो टिपिकली सीन आफ्टर रेन व्हेन द सन इज लो डिस्प्लेज अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स इन द स्काई। सो रेनबो क्या करता है, जब भी हमको रेनबो दिखता है बारिश के बाद, सो हमको स्काई के अंदर रेनबो में बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, राइट। सो द 7 कलर्स ऑफ रेनबो वो क्या है हमारे पास, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। देन अगर हम बात करें सोप बबल्स की और सीडीज की, सो जब हमारी लाइट इंटरैक्ट करती है थिन फिल्म्स के साथ जैसे कि सोप बबल्स के साथ या फिर सरफेस ऑफ सीडीज के साथ, सो उसमें भी हमको क्या देखने को मिलता है, हमको एक कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलती है। सो इन ऑब्जर्वेशन से हमको क्या आइडिया मिलता है कि सनलाइट जो है वो मिक्सचर ऑफ कलर्स से मिलकर बनी हुई है। सो बाय स्टडिंग दीज कलर डिस्पर्जन हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये व्हाइट लाइट जो है, जो सनलाइट की व्हाइट लाइट है, इसके अंदर कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। Now next we have understanding sunlight and color mixing. So first of all we have dispersion of light. So बच्चों आप लोग यहाँ पर एक इस प्रिज्म को देख सकते हो। So ग्लास प्रिज्म को हम लोग यूज करने वाले हैं so that हम ये शो करें कि सनलाइट जो है वो मल्टीपल कलर से मिलकर बनी हुई है। So by directing a narrow beam of sunlight through one face of prism and onto a white sheet of paper of wall, you will observe a spectrum of colors similar to those in a rainbow. So now बच्चों आप लोग यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक प्रिज्म रखा एंड इस प्रिज्म से हम लोग एक लाइट, एक रे ऑफ लाइट पास करवा रहे हैं। सो जैसे ही ये रे ऑफ लाइट हमारे प्रिज्म से पास करेगी, सो हमको इसके अदर साइड पे क्या दिख रहा है, हमको स्पेक्ट्रम ऑफ कलर दिख रहा है, हमको वही कलर्स दिख रहे हैं जो कि हमको रेनबो में देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कलर्स है, वी हैव रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट एंड ये सब क्या शो कर रहे हैं कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। नाउ नेक्स्ट वी हैव मिक्सिंग कलर्स टू ऑब्टेन व्हाइट लाइट। सो नाउ बच्चों टू एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग कलर्स टू प्रोड्यूस व्हाइट लाइट हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिवाइड द डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स। हम यहाँ पर 7 कंपार्टमेंट्स बनाएंगे। देन इसके बाद या तो हम पेंट कर सकते हैं या फिर हम पेस्ट कर सकते हैं 7 रेनबो कलर्स को इन सेगमेंट पे। एंड जैसे ही अब हम इस डिस्क को घुमाना स्टार्ट करेंगे, सो इसके बाद हमको क्या दिखेगा कि डिस्क जो है वो स्पिन होना स्टार्ट होगी एंड कलर्स आपस में ब्लेंड हो गए एंड डिस्क जो है वो पूरी व्हाइट कलर की दिखने लग जाएगी। सो इससे हम लोग ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हमारी जो व्हाइट लाइट है वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है एंड इस डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स डिस्क। सो नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव रैप अप। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइंस में, पाथ ऑफ लाइट जो है वो स्ट्रेट होता है एंड इसको हम लोगों ने इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट किया था बाय यूजिंग स्ट्रेट एंड बेंट पाइप्स। एंड हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है शाइनी सर्फेसेस से जैसे कि मिरर से और वाटर से। मिरर्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को एंड देन प्लेन मिरर्स जो है वो कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, सेम साइज की। प्लेन मिरर्स की इमेजेस अपराइट होती है एंड रिवर्स्ड होती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट चीजें हमको दिखती है। नाउ कॉन्केव मिरर्स कैसे होते हैं, वो इनवर्ट कर्व्ड होते हैं एंड ये रियल इमेजेस बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स आउटवर्ड कर्व्ड होते हैं एंड ये स्मॉलर और वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग हमारे व्हीकल्स के साइड मिरर्स की तरह यूज करते हैं। देन कॉन्वेक्स लेंसेज क्या करते हैं, ये लोग कन्वर्ज होकर रियल इमेज बनाते हैं, वेयर एज कॉन्केव लेंसेज क्या करते हैं, ये डाइवर्ज होकर स्मॉलर एंड वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस चीज पे फोकस करें कि सनलाइट डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर फोकस होनी चाहिए लेंसेज पे। देन सनलाइट जो है वो किससे बनी होती है, सनलाइट के पास मल्टीपल कलर्स होते हैं एंड प्रिज्म जो है वो सेपरेट कर सकता है हमारी सनलाइट को डिफरेंट कलर्स के अंदर। So now students, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions, you have case study and prescribed questions as well. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter समझ आया होगा. Now I am going to meet you in the next class. Till then take care. Bye bye.